Well, it's such a joy to welcome you all for our evening devotion. Carmel family, welcome. Extended family, welcome. Thank you for being here. Let's all worship the Lord with a new song. As the deer panteth for the water, so my soul longs after you. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. As the deer panteth for the water, so my soul longs after you. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit lead. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit lead. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. तू मेरा बल, तू मेरी ढाल, यीशु मेरी ये चट्टान। आंधी हो या हो तूफान, यीशु मेरा सर्वशक्तिमान। तू मेरा बल, तू मेरी ढाल, यीशु मेरी हे चट्टान। आंधी हो या हो तूफान, यीशु मेरा सर्वशक्तिमान। असंभव कुछ भी नहीं, असंभव कुछ भी नहीं, असंभव कुछ भी नहीं, असंभव कुछ भी नहीं। यीशु तू जो साथ है, यीशु तू जो साथ है, यीशु तू जो साथ है। तू मेरा बल, तू मेरी ढाल, यीशु मेरी है चट्टान। आंधी हो या हो तूफान, यीशु मेरा सर्वशक्तिमान। तू मेरा बल, तू मेरी ढाल, यीशु मेरी हे चट्टान। आंधी हो या हो तूफान, यीशु मेरा सर्वशक्तिमान। Jesus is my rock, and He is my refuge and my strength. और प्रभु यीशु मसीह मेरी चट्टान है, मेरा गढ़ और दृढ़ स्थान है। You know what a privilege that we have, that we could run to the Lord anytime that we are in fear, have any kind of fear, and any time of need that we can run to the Lord. और ये कितनी सौभाग्य की बात है, हम किसी भी वक्त, किसी भी समय और किसी भी घड़ी हम उस स्थान पर दौड़ के जा सकते हैं जब हम समस्या और तकलीफ में होते हैं। I would like to read a scripture from Psalms 96,
1 verse 1. और मैं आप लोगों के लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, भजन संगीत उसके 96 का 1 पद। It says, "Oh, sing to the Lord a new song. यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, Sing to the Lord all the earth." इस सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा के लिए गाओ। Well, I'd like to talk about a new song to the Lord. और आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर प्रभु के लिए एक नया गीत को गाना। God always likes new songs. और हमारा परमेश्वर हमेशा नए गीतों को पसंद करता है। See, the key to our spiritual growth is developing spiritual disciplines. और हमारे आत्मिक जीवन की जो बढ़ोतरी होती है वो हमारे आत्मिक अनुशासन पर निर्भर होती है। And sometimes the sacred routines we have, they like they turn to becomes rituals. और कई बार हमारे जो दैनिक जीवन में जो हमारी आत्मिक जो रस्म होती है, रीति रिवाज होती हैं, वो हमारे लिए एक रीति रिवाज बन जाती हैं। So it's it's not a when our routines becomes routines, it becomes bad, especially when we do the spiritual things and sacred things for God. और हमारे जो रीति रिवाज हमारी दिनचर्या बन जाती हैं तो वो एक हमारे आत्मिक जीवन के लिए एक रीति रिवाज की दिनचर्या बन जाती है। We know routines are very important for us. हम सब जानते हैं हमारे हर दिन की दिनचर्या हमारे बहुत जरूरी है। We practice the morning rituals like taking shower, brushing our teeth and putting deodorant. All these are our routines. और हम जानते हैं कि हम प्रतिदिन अपने दिनचर्या में जो हमारे जो दैनिक जीवन की बातें उसको हम आमतौर पर करते रहते हैं, जैसे नहाना, दांतों को साफ करना, डिओड्रेंट को लगाना। And on behalf of our family and friends, we need to continue to do that. और ये सब कुछ हमें करना होता है, अपने परिवार, अपने मित्र, अपने इर्द गिर्द जितने लोग हैं उनके लिए हमें सब कुछ करना पड़ता है। These are all good routines and that we practice and we need to practice those continuously. और हम इसको करते आ रहे हैं और ये हमारे लिए एक रस्म बन चुका है, ये हमें करते रहना भी पड़ेगा। But when it comes to spiritual practice like prayer, and singing song to the Lord, and there is a danger that we have that when we do this every day the same manner, it turns to become routines and we emphasize more on how we do it more than why we do it. और जब ये जो हमारी जो दिनचर्या जो हम करते आते हैं वो हमारे आत्मिक जीवन में आती हैं तो आत्मिक रूप से जब हम इस दिनचर्या को एक रीति रिवाज के अनुसार करने लगते हैं तो ये हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक हो जाता है, क्योंकि हम जानते कैसे करना है लेकिन हम क्यों कर रहे हैं इसके प्रति हम अज्ञान रहते हैं। Well, when we pray for the food, there is a prayer that we memorize and we all the time we do the same. और जब कभी भोजन सामने आता है हम भोजन के लिए प्रार्थना करते हैं और हम उसको एक किस्म याद कर लेते हैं और हर दिन वो हमारी एक दिनचर्या बन जाती है। And not just the time of food, when we pray our regular prayers, many a times we pray our prayers from our memory. और कई बार ना सिर्फ भोजन के लिए लेकिन हमारी दैनिक जीवन में जब हम प्रार्थना में बैठते हैं हम वही जो प्रार्थना करते जाते हैं जिसको हम कई दिनों से करते आ रहे हैं। But I believe that God wants us to be more creative and pouring our heart to the Lord. लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम और अधिक रचनात्मक हो जाएं और क्रिएटिव हो जाएं और अपने दिल की बातों को उसके समक्ष में उंडेल के रखने वाले हो जाएं। Let us not do it because we are familiarized with certain words that we put into our prayers and our spiritual things, that we do it out of practice, not out of our heart. और ना होने देखिए जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं तो हमारे जो शब्द है, हमारे जो प्रार्थना करने की जो रीति है वो हमारे लिए एक हम जो दिनचर्या से जिसके लिए हम बहुत उसको करते आए उसी को हम दोहराते जरा ऐसा ना हो। We can call it familiarization, we can call it ritualization. और हम इसको नाम दे सकते हैं कि ये जो एक रीति रिवाज एक रस्म हो गया है। So Psalmist 6 times in the book of Psalms it says, sing a new song to the Lord. और भजन संगीता लिखने वाला कहता है 6 बार कि प्रभु के लिए परमेश्वर के लिए एक नया गीत गाओ। Because God does not want us to worship from our memory.
क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम जो याद किए हैं, जो स्मरण किए हैं, उसी को हम प्रार्थना करें। We need to sing a new song to express our new dimension of love for our God. और लेकिन हमसे वो चाहता है कि हम एक नए गीतों के द्वारा अपने जीवन की इच्छाओं को उसके लिए प्रकट करने वाले हो जाएं। Well, when we study about our brain, जब हम अपने मस्तिष्क के बारे में अध्ययन करते हैं, brain is, it's a small organ. और ये बहुत छोटा सा एक अंग है, It's about 3 pounds or 1.3 kilograms. और ये जो 3 पाउंड्स का है, 1.3 किलो के लगभग And है, it has 2 parts. और इसके 2 भाग होते हैं। And, it has many neurons. और इसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, And it has about 100 billion neurons. और ये जो मस्तिष्क में है इसमें 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, 1 billion is 100 crores. और 1 बिलियन जो 100 करोड़ होता है। You can imagine that, 100 lakhs is 1 crore and 100 crore is 1 billion. और Yeah. आप लोग जरा कल्पना करके देखिए कि जब वो जो 100 बिलियन इतना अधिक है, Yeah, so you can just imagine that it's about 10,000 crores of neurons in my little brain. आप लोग कल्पना करके सोचिए कि हमारे जो छोटे से मस्तिष्क में इतने सारे न्यूरॉन्स जो हमारे मस्तिष्क में पाए जाते Well, what हैं। is a neuron? और न्यूरॉन क्या है? Neuron is a cell within our nerve system. और ये जो न्यूरॉन एक ऐसी कोशिका है जो हमारे जो कोशिकाओं से जुड़ी होती है, That can transmit information to other nerve cells, muscles and gland cells. और वो क्या करता है कि जो भी बातें हैं उसको स्थानांतरित करता, पहुंचाने का कार्य करता है कोशिकाओं से तंत्रिका में, तंत्रिका से दूसरे ब्लड सेल्स में वो उसको हस्तांतरित करता है। Okay, that's about neurons. और ये है न्यूरॉन्स। Now let me talk about the connections in the brain that we have. और अभी मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे जो मस्तिष्क का जो जोड़ है, जोड़ के बारे में बताना चाहता So हूँ। there are 100 trillion connections in each person's brain. 100 trillion. और फिर हर एक व्यक्ति के मस्तिष्क में 100 ट्रिलियन जोड़ होता है। Well, 1 lakh crore is 1 trillion. और 1 ट्रिलियन होता है 1 लाख करोड़। I am amazed, very fascinated by the book by Dr. Paul Brandt. और मुझे एक किताब जिससे मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ, एक डॉक्टर Paul Brandt पॉल ब्रैंड के द्वारा लिखा गया है। and Philip Yancey, they co-authored this book. और जो फिलिप यान्सी, ये दोनों ने मिलकर इस किताब को लिखा And the है। book is titled as Wonderfully and Fearfully Made. और वो जो Or किताब, Fearfully and Wonderfully Made. और ये जो किताब का नाम है कि बहुत अद्भुत रीति से हमारी सृष्टि की गई है। See how God has created is just unbelievable and amazing. और किस प्रकार से परमेश्वर ने हमारी सृष्टि की है, बहुत ही अलौकिक और बहुत ही अद्भुत है। And then Dr. Paul Brandt was a doctor in CMC Vellore. He was working among the leprosy patients. और फिर ये जो पॉल ब्रैंड डॉक्टर थे सीएमसी वेल्लोर में, जो कोड़ियों के बीच में सेवा को करते थे। And he also wrote about the blessing of pain. Pain is a blessing because he was working among the lepers. They did not experience pain and they would sleep in the night and morning they would get up and they found that there was no finger because rats came and ate that finger away, and they did not realize because there was no pain, so pain is a blessing. He writes about that also. और उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि दर्द एक व्यक्ति के जीवन में कितना महत्व रखता है, क्योंकि कोड़ियों को कभी भी दर्द का एहसास नहीं होता है। इसलिए कई बार जब वो रात को सोते हैं और सुबह उठते तो पाते हैं कि उनका जो उंगली का आधा भाग नहीं है, चूहे ने आके खा गया, क्योंकि उनको दर्द का अनुभव नहीं है। So he writes about blood. और उन्होंने रक्त के बारे में लिखा है। And one drop of blood और उन्होंने इस प्रकार से लिखा कि एक बूंद जो खून with the size of a small O, और वो एक छोटे से नल के पाइप, O, the letter O. ओके, और वो अक्षर ओ के जैसा है। And in that there are 50 lakhs red cells. और उतनी छोटे से बूंद में 50 लाल रक्त कोशिका होती है। And then 30 lakhs of platelets. और
30 लाख प्लेटलेट्स होते हैं and 7,000 white cells. और 7,000 जो श्वेत कणिका होती हैं। And blood is the first cell to live and the last to die in a human body. और एक व्यक्ति के शरीर में खून जो उसके जीवन और मृत्यु को उसको ले जाती है। Well, I can keep on talking about it. और मैं इसके ऊपर लगातार आपसे बातें कर सकता I हूँ। just want you to know that you are fearfully and wonderfully made by the hand of God. और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि आप और मैं बहुत अद्भुत रीति से और बड़े बहुत अच्छे फेयरफुली तरीके से हमें बनाया So गया our है। brain has two parts, और मस्तिष्क के दो भाग हैं, left and right, एक है दाई और एक और बाई और and both of them have different roles to play. और ये दोनों भाग का अलग अलग कार्य होता है। Well, the left brain और जो बाया जो मस्तिष्क है is more verbal and analytical, और वो ज्यादा क्या होता है कि गुणात्मक गणनात्मक होता है and also it's very orderly than the right brain. और जो दाहिने तरफ के मस्तिष्क से बाएं तरीके थोड़ा ज्यादा क्रमबद्ध तरीके से रखा होता When we है। reason things out, it happens in our left brain. और जब आप कुछ चीजों को करते हैं तो वो आपके मतलब बाएं तरफ के मस्तिष्क में होता Our है। memory, our mathematics, our facts, all are given, all are in the left part of the memory, और of the brain. और हमारा जो गणित हो गया और हमारे जो याद करते जो भी बातें ये सब फैक्ट हो गया ये सब हमारे जो बाएं तरफ के मस्तिष्क में रखा रहता है। I know some of you don't like mathematics. I also did not. I mean, maybe I had to strengthen my left part of the brain little more. और फिर मैं जानता कि आप में से कुछ लोगों को गणित पसंद नहीं है, मुझे भी पसंद नहीं है, मुझे अपने जो बाएं तरफ के मस्तिष्क को थोड़ा और सही करना होगा। And so it all are in the left part of the brain. और ये सब गणित और इस प्रकार की सब बातें जो कि बाएं तरफ के मस्तिष्क में होता And है। then what happens on the right brain? और फिर जो दाहिने तरफ के मस्तिष्क में क्या होता This है is where imagination takes place. और इस तरह के जो मस्तिष्क में जो रचनात्मक जो क्रिएटिव बातें होती You हैं know, it has more feelings of visualization. और ये ज्यादा अनुभव करने वाले और फिर जो क्रियात्मक रूप से जो नए नए तरीकों को ढूंढने वाला भाग होता है। Intuition and arts and daydreaming all happens on the right side. और फिर सपने को देखना और फिर दिन में ज्यादा- सपने देखना, you know that's दिन में सपने देखना सपने को बना ये सब बातें जो क्रियात्मक कलात्मक बातें होती है हमारे दाहिने मस्तिष्क में। So I also like to daydream. और मैं भी सब दिन में सपने देखने वाला You हूँ। know, imagine great things, you know, like future, all those are great. So it all happens on the right part of the और मैं brain. भी बड़ी बड़ी कल्पनाओं को करता हूँ जो बहुत अच्छी बातें जो हमारे दाहिने मस्तिष्क में होती हैं। So when we worship God, और जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं God likes our worship when it comes from the right side of our brain than on the left side. परमेश्वर चाहता है कि हमारी आराधना जो कि दाहिनी तरफ के मस्तिष्क के भाग से हो ना कि बाएं तरफ से। You know why I said it? मैंने क्यों इस प्रकार से कहा? Because left side is more of memory, ritual. You know, I've been doing it. I know how to do it. It all happens on the left part of the brain. कहने का कारण ये है कि जो बाएं तरफ का जो मस्तिष्क का भाग होता है उसमें ज्यादा हम जो याद करके रखे हुए हैं और जो हमारे रीति रिवाज जो हम करते करते आए वो बातें हमारे बाएं मस्तिष्क में But होती हैं। God wants our worship to be from the right side, which means that we are singing a new song to the Lord. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि जब हम उसकी उपस्थिति में जाएं उससे प्रार्थना करें हम अपने दाहिने तरफ के भाग के मस्तिष्क से करें क्योंकि वो बहुत कलात्मक होता है क्रियात्मक क्रिएटिव होता है रचनात्मक होता है और वो परमेश्वर कहता है मेरे लिए तुम एक नए गीत को गाओ। From imagination, from intuition, from creativity, let's, you know, every day let our offering be a fresh offering to the Lord from our heart, not from our memory. और फिर परमेश्वर चाहता है कि हम अपने दिल से गाने को गाने वाले हो जाएं और ना कि हम सिर्फ जो याद करके रखें जो अपने स्मरण में रखें उसके द्वारा करें लेकिन हमारे जो इस तरफ के जो मस्तिष्क है उसमें से नई नई बातें जो कलात्मक है जो क्रिएटिव है नए नए तरीकों के द्वारा नए गीतों के दिल की गहराई से हम उसको आराधना दें।
let our prayer not be repetition, हमारी प्रार्थना ना होने दे कि हम याद करके उसको दोहराने वाले हो but जाएं, let our prayers be communication from the depth of our heart to our Father. लेकिन होने दे हमारी जो प्रार्थना हमारे दिल की गहराई से हमारे पिता से वार्तालाप करने वाली हो जाने You दे। can tell your Father, our Heavenly Father, every pain that you have in your heart, और आप अपने स्वर्गीय पिता से आप अपने दिल की सारे दर्द को आप बता सकते every हैं, fear that you have in your mind, और आपके सोच में जो भी भय है आप उसको बता सकते हैं, and not from your memory, but from your experience and from your heart, depth of your heart, what you're going through that day. Just tell the Father. और ये नहीं कि आप उसको जो याद करके रखे उससे कहे, लेकिन आपकी दिल की गहराई की जो भी दर्द, जो भी बोझ, जो भी बातें हैं आप उससे कह दें। In Matthew chapter 6 verse 7, Jesus talks about it. और मत्ती रचित सुसमाचार 6 के 7 में प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं। The Bible says in Matthew chapter 6 verse 7, और मत्ती रचित सुसमाचार 6 के 7 में प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं। it says, when you pray, do not use vain repetitions as the heathen do, for they think that they will be heard for their many words. और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं कि प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। See, therefore, do not be like them. और उनके जैसे ना बनो। That's what these are in red letter. That means these are the words of Jesus. और ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहा गया शब्द है। So Jesus said, do not, pray like some other people. They just repeat it. They just, say the same thing again and again. और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं कि तुम उन लोगों के जैसे ना बनो जो कि एक ही बातों को बार बार दोहराते ही रहते हैं। That's we don't use rosaries. इसलिए हम लोग रोजरी का इस्तेमाल नहीं करते। They are repetitions. और वो तो सिर्फ दोहराने वाली The बात same thing you say 100 times. और एक ही बात को 100 बार कहना। Or 101 time or 200 times. 101 बार या 200 बार। There are many people do that. और कई लोग इस प्रकार से करते But हैं। Jesus said, लेकिन यीशु ने कहा, let your prayer come from your heart. और तुम्हारी प्रार्थना दिल की गहराई से आने दे। See, when Jesus comes to your heart, जब प्रभु यीशु मसीह आपके दिल में आता है, it is a new relationship. और ये एक नया संबंध होता है। It is not a ritual. और ये कोई भी एक रस्म नहीं है। It's a relationship. ये संबंध है। See, religions talk about rituals. और जो धर्म हमें सिखाता है रीति रिवाज को। That is why I don't like Christianity as a religion. I don't like it. और इसलिए मुझे भी मसीहत एक धर्म के रूप में पसंद नहीं है। But I like to follow. I love followers of Jesus. I love to follow Jesus Christ and His words, not rituals. और मैं पसंद करता हूँ जो प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, जो उसके पीछे चलते हैं, उसके अनुयायी हैं, उनके मैं पसंद करता हूँ, लेकिन जो रीति रिवाज के मसीहत में मैं पसंद नहीं करता। Religions are made by human beings to reach out to God. और फिर जो रीति रिवाज जो धर्म है वो इंसानों ने बनाया है परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग। But what is Jesus? Who is Jesus? लेकिन यीशु मसीह कौन है? Or what Jesus did, that He reached out to us, not us to Him, but God reaching out to us. लेकिन प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कि हम उन पर तक पहुंचे, लेकिन वो हमारे पास आए। That is what truly following Jesus Christ. और यही है वास्तव में उसका अनुसरण करना। So Jesus said, इसलिए यीशु ने कहा, do not be like other people. Do not be like repetition. Let your prayers not be repetitions. इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारी जो प्रार्थना है कि वो एक रीति रिवाज के ऐसा दोहराने वाली ना हो जाए। Let our prayers not be some formulas. और आपकी प्रार्थना में कुछ सूत्रों का उपयोग ना करें। And many times we start in a specific way and we end in a specific way. और कई बार हम क्या करते हैं कि एक ही तरीके से हम प्रार्थना शुरू करते हैं और जिस तरीके से हम समाप्त करते हैं उसी तरीके से हम समाप्त करते हैं। And we end with Amen. और हम उसके अंत में आमीन कहते हैं। And Jesus said, let there be something new. और लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है कि कुछ नया होने दें। Let us try to even our posture, even our way of prayer, we can change it. Let that be something fresh and new. और ऐसा नहीं है कि हम हमेशा एक ही तरीके से बैठते थे वैसे ही बैठ के प्रार्थना करें। हम अपने बैठने की जो अवस्था को बदल सकते हैं और परमेश्वर चाहता है कि हम कुछ नए तरीके से उसके उपस्थिति में We जाएं। can try to do that. और आप उसको कर सकते हैं। We can get out of our routine, regular way of prayer and do something new for the Lord. और हम अपनी जो दिनचर्या से जो रस्म के अनुसार हम करते आ रहे थे उसमें से बाहर आ जाए और हम प्रभु
के लिए कुछ नए कार्य को करें। Pray a new prayer to the Lord. हे कि परमेश्वर से नई प्रार्थना को See, करें। if me and you want God to do something new, और मैं और आप चाहते हैं कि कुछ नया करें, I and you cannot keep on doing the old thing. और तब हम जो पुरानी जो बातें करते हैं उसको हम नहीं करेंगे। Let's do something new and let God do something new for us. इसलिए आइए हम भी कुछ नया करें जब परमेश्वर हमसे हमारे लिए नया करना चाहता That's है। why we need to sing a new song to the Lord. इसलिए हमें जरूरी है कि परमेश्वर के नए गीत के लिए गीत May को the गाएं। Lord richly bless you. परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। As we pour our prayers from our heart to the Lord, जब हम अपने हृदय की बातों को उसके सामने उंडेल देते हैं, not from our memory, हमारे याद के स्थानों से not नहीं, from our left brain, और अपने जो बाएं मस्तिष्क की तरफ से but नहीं, being creative, और लेकिन हम हो जाए क्रिएटिव हो जाए, singing a new song to the Lord. परमेश्वर के लिए नया गीत गाने वाले हो जाए। May the Lord richly bless each one of you. परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। Amen. आमीन। Oh, Jesus. यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करना भलाई तेरी, सदा रहेगी मुझ पर तेरी विश्वास योग्यता, देखूंगा मैं उम्र भर, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। Let this be our song and our prayer. और वो जाने दिए हमारे लिए गीत हो और हमारी प्रार्थना। Jesus, let your name be exalted. प्रभु यीशु तेरे नाम ऊंचा उठाएं। Let your name be lifted up. तेरा नाम हम ऊंचे में उठा दें। Because when Jesus' name is lifted up, और जब प्रभु यीशु मसीह के नाम ऊंचे में उठाया that will जाएगा, bring healing and glory to the name of the Lord, healing to the people in this world. और तब वो अपने जो चंगाई और आशीष को अपने लोगों के लिए इस संसार में भेजेगा। We want to pray for you. और हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते God हैं। is doing so many great things. और प्रभु परमेश्वर ने एक अद्भुत कार्य को कर रहे हैं। Let's pray together. आइए हम एक साथ मिलकर Whatever प्रार्थना। needs you have, आपकी जो भी जरूरत now है, just say that prayer. The need, you can say to the Lord what your needs you have. God is going to do a miracle in your life. और आपके जीवन की जो भी जरूरतें होने दे, आप इस समय उस प्रभु को बता दे और वो आपके जीवन में चमत्कार को God करेगा। has healed many people. और उसने कई लोगों को चंगाई दी God है। has given breakthroughs to many people. और उन्होंने कई लोगों के जीवन में छुटकारे को दिया है। And He can do it for you also. और वो आपके लिए भी करने के लिए सक्षम है। Because God is not a respecter of person. क्योंकि प्रभु परमेश्वर किसी भी व्यक्ति का पक्षपात नहीं करता। God loves you. और वो आपको प्यार करता है। And He wants to come into your life and He wants to heal and touch your life. और वो चाहता है वो आपके दिल में आए और आपको आपके शरीर को छू के चिंगाई देने के लिए। Let's all pray together. आइए हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करें। Loving Heavenly Father, और प्रेम ईश्वर के पिता we परमेश्वर, thank you for your presence in each one of those homes and places that your children are listening to you. और हम तुझे धन्यवाद देते हैं और हम धन्यवाद देते हैं तेरे उपस्थिति हर एक परिवार जो तेरे वचन को सुन रहे उनके बीच में है। At this time, I pray for each and every one of your children. और इस समय प्रार्थना करते तेरे हर एक संतानों के लिए, Whatever needs they have, उनकी जो भी जरूरत हो, Heavenly
Father, I pray और स्वर्गीय पिता मैं प्रार्थना करता that हूँ you would touch them and Lord meet all their needs. और मैं प्रार्थना करता हूँ उन्हें स्पर्श कर उनकी जरूरत को पूरा कर। I pray for healing at this time. और इस समय प्रार्थना करते हुए चंगाई के I लिए pray for physical healing. और मैं शारीरिक चंगाई के लिए I pray प्रार्थना for emotional healing. मैं भावनात्मक चंगाई के लिए I pray प्रार्थना for करता spiritual healing. हूँ आत्मिक चंगाई के लिए प्रार्थना करता Lord, I हूँ pray for financial breakthroughs. और मैं आर्थिक छुटकारा के लिए प्रार्थना You करता are हूँ a prayer answering God. और परमेश्वर तू प्रार्थना को उत्तर देने वाला And we है know, God, that there is nothing impossible with you. और हम जानते हैं कि तुझसे कोई भी कार्य असंभव नहीं So है whatever needs your people have, और तेरे लोगों की जो भी जरूरत है I pray that you would meet all their needs according to your riches in glory. और हम प्रार्थना करते तेरे धन की महिमा के अनुसार उनकी जरूरत को पूरा कर। Thank you for your word, O God. धन्यवाद तेरे वचन के लिए Help us to sing a new song to you. और हमारी मदद करके हम तेरे नए गीत को गाने वाले हो Lord, जाए। all our spiritual exercises, let not those be rituals, rather than, Lord, those be from our heart, O God, and those be fresh and new as a sacrifice unto you. और हम तुझसे प्रार्थना करते हैं हम जो भी कार्य करते हैं परमेश्वर आत्मिक जीवन में और वो हमारे एक रीति रिवाज रस्म ना बन जाए, लेकिन हमारी प्रार्थना है कि हमारी जो प्रार्थना है हमारे दिल की गहराई से हम प्रभु जी हालेलुया एक क्रिएटिव रूप से एक रचनात्मक रूप से कल्पना करते हुए और तेरा आराधना करने वाले हो जाए। We give you the glory. हम तुझे महिमा देते हैं। Thank you for hearing and answering us. धन्यवाद होते प्रार्थना सुन के उत्तर In देने Jesus' mighty name. यीशु के सामर्थ्य नाम And से all of us said और together, हम एक साथ मिलकर कहें Amen, Amen, Amen. God bless you. और परमेश्वर आप सबको You know, आशीष I दे। have an important announcement to make. और मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही एक विशेष सूचना देना चाहता It's a हूँ good news. और ये बहुत भला समाचार That है Carmel Community Church, we have crossed 8,000 subscribers in YouTube. और हमने YouTube में 8,000 से ज्यादा लोग हमारे हैं Hallelujah. It's a good news. और ये बहुत अच्छा समाचार And I है want to congratulate our media team, Pastor Meshach and Pastor Sam and all the media team for the hard work. और मैं अपने मीडिया टीम पास्टर मेशक पास्टर सैम और सारे उनके दल को मैं धन्यवाद देना चाहता We हूँ can all rejoice, Carmel family और हम सब कार्मेल फैमिली हम आनंद को and मनाएं extended family और हमारे जितने लोग जुड़े हुए हमारे who साथ are watching us in Let's All Celebrate. और आप जितने लोग हमें देखते हैं हम सब मिलकर जश्न को मनाएं। If you have not subscribed yet, और यदि आप आज तक इसको नहीं सब्सक्राइब किए I हैं want you to go to the YouTube and go to Carmel Community Church page and subscribe it. It's a blessing. और मैं आपसे अनुरोध करता हूँ आप कार्मेल कम्युनिटी चर्च के YouTube के पेज में जाके उसको आप लोग सब लोग सब्सक्राइब करें। Thank you and God bless you. धन्यवाद आप सबको प्रभु आशीष दे।